ہاں جی، پہلا دور جو 30 منٹ کا تھا اور 5 اضافی منٹ تھے وہ ختم ہوا. اب دوسرا جو دور ہے وہ شروع ہونے والا ہے ربیٹل کا. تو یہ 25 منٹ ہوں گے اور اس میں جواب دعویٰ ہوگا. اور سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں حکیم عمران ثاقب صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا جو ربیٹل میں جواب دعویٰ ہے وہ دیں آ کے. جی 25 منٹ ہیں. جناب پادری صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کچھ جھوٹا حوالہ دیا ہے، وہ حوالہ نہیں دے سکتے. وہ کون سا حوالہ ہے؟ کون سا حوالہ ہے؟ حوالہ دے دیں مجھے، میں دے دیتا. وہ حوالہ مجھ سے لے لیں جناب. جو یار کی انہوں نے پانی پیاؤ، انہوں نے کی جو جھوٹا حوالہ میں نے دیا ہے وہ مجھے بتائیں. میں نے جو جھوٹا حوالہ دیا ہے وہ مجھے بتائیں جو میں نے جھوٹا حوالہ دیا ہے. میں ابھی کھول کے آپ کو حوالہ دے دیا. ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو حکیم عمران ثاقب کے حوالے کو چیلنج کرے. چلے آئیں آپ. اگلی بار پڑھ لینا. جنوں میں بک رہا. اب ادھر سنیں میری بات سنیں. دعویٰ کیا ہے؟ سنو میرے بھائیوں. یہ پاگل ہو چکے ہیں. میں نے کہا تھا مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. مشرک جنون، دیوانگی اور پاگل پن کا شکار ہوتا ہے. سنیں یار، چپ کریں میری بات میں. بولے نہیں میری بات میں. بیٹھ جائے ادھر جا کے بیٹھ جائیں ادھر. دعویٰ کیا ہے؟ اور دعویٰ کیا ہے؟ سنیں دعویٰ کیا ہے. اور بیٹھو بھائی، بیٹھو. اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑا پاگل پن، اس سے بڑی جنون اور دیوانگی کوئی نہیں. بات سنیں یار، کوئی نہ بولے. جو بولے گا وہ میرا دشمن ہے. میرے بھائیوں آپ بیٹھ جاؤ بھائی. حق دلیل سے جیتا کرتا ہے. ہمارے پاس دلائل اللہ کے فضل و کرم سے. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. بیٹھ جائیں آپ پلیز آپ بیٹھ جائیں بھائی. وہ کر رہے ہیں بھائی. کیوں اٹھے ہیں وہ اٹھے ہیں. آپ بیٹھ جائیں بھائی. میرے بھائی بیٹھ جائیں. آپ بات ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. سنیں بھائی، سنیں. ہاں جی ٹھیک. آپ بیٹھ جائیں بھائی. بات سنیں یار. اب آپ بیٹھیں گے. اب سنیں جناب بٹی صاحب، ادھر سنیں یار. میری طرف بیٹھ جاؤ بھائی. اچھا جی، ان کا دعویٰ یہ ہے، یہ اپنے دعوے سے پھر گئے ہیں. یہ بڑا ناچے ہیں، بڑا تڑپے ہیں. جو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنا دعویٰ اور دلائل دعویٰ پیش کیا ہے نا، میں دیکھوں گا جب وہ ان کا جواب دیں گے. وہ تو اپنے دعوے سے پھر گئے ہیں. آخر میں دعویٰ یہ تھا کہ کلمہ خدا ہے، اور وہ کلمہ کون ہے؟ یسوع. اور آخر میں جو انہوں نے آیت پیش کی ہے نا، وہ انہوں نے آیت پڑھی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے باپ اور اپنے باپ، یعنی تمہارا بھی وہ باپ ہے، یسوع کا بھی باپ ہے. فرق کیا ہوا؟ تمہارے خدا اور یسوع کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خدا اور اپنے خدا، یعنی یسوع کا بھی خدا ہے تے خدا دا بھی کوئی خدا ہوتا ہے. کہ متوجہ ہوئیے. پانی پیو، میں اللہ دے فضل نہ پانی پیا کے مارا گا. یہ اپنے دعوے سے پھر چکے ہیں. آپ کو مبارک ہو، یہ اپنے دعوے سے پھر چکے ہیں. دعویٰ کیا تھا؟ کہ یسوع جو ہے وہ کلمہ ہے اور کلمہ خدا ہے. اور آخری آیت پڑھ رہے ہیں کہ بھائی بیٹھ جائیں آپ. آخری آیت پڑھ رہے ہیں کہ یسوع نے کہا، یہ بائبل سے خود پڑھ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ تمہارے خدا اور اپنے خدا کے پاس. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. بات جنگ دلائل سے جیتی جاتی ہے، شور کرنے سے نہیں، رولا ڈالنے سے نہیں. آپ ذرا بائبل کو ذرا کھولیں اور سنتا جا اور شرماتا جا. میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں اپنے کفر سے، اپنے شرک سے آپ توبہ کریں. میں آپ کو مسیحی بھائیوں، میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، ذرا آپ سنیں. یسوع مسیح انسان ہیں. 1 تیموتھیوس، یہ سنیں، نوٹ کریں میری بات کو. یسوع مسیح انسان ہے. 1 تیموتھیوس 2:5. خدا انسان نہیں ہے. خدا انسان نہیں ہے. ہاں جی، ہوسیہ 11:19، گنتی 23:19 کے اندر کہ خدا انسان نہیں ہے. یسوع مسیح، بائبل کہہ رہی ہے یسوع مسیح انسان ہے. بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا انسان نہیں ہے. اب
यीशु मसीह कैसा इंसान है, सुनो। जैसे जैसे कलमे को ये कह रहे हैं ना, कलमा खुदा था, वो सुन लो ज़रा, उसकी सिफतें सुन लो ज़रा। ये कह रहे थे ना कि दोनों की सिफात एक है। अब ज़रा सुन लो, बाइबल में पढ़ने लगा हूँ, लूका 11:27 पढ़ो ज़रा दिल थाम के। लिखा है, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, और मुबारक हैं वो छातियाँ जो तूने चूसी। यीशु मसीह मरियम सदीका के रहम में रहा, रहम में परवरिश पाई। सारी दुनिया जानती है कि माँ के रहम में परवरिश कैसे पाता है। खून से, मरियम सदीका के खून से यीशु परवरिश पा रहे हैं, बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। और छातियाँ चूसी, जब वो पैदा हो गए तो मरियम की, उनके दूध से उनकी परवरिश होती है। ये खुदा है, ये खुदा की सिफतें हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करो। और आगे भूख उनको लगती है, मती 4:2 के अंदर, और मती 21:18 के अंदर। भूख से तंग वो एक अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं। खुदा जो है आलमुल गैब है, वो दिलों के भेद भी जानता है। यीशु आलमुल गैब भी नहीं है। वो अंजीर के एक दरख्त के पास जाते हैं कि शायद इसमें फल लगा होगा, मगर जब वहाँ जाके देखते हैं कि इसके अंदर कोई फल नहीं है, तो अंजीर के उस दरख्त को बद्दुआ देते हैं। मतलब वो आलमुल गैब भी नहीं थे। तो किसी ने हज़रत मसीह से आके सवाल किया कि मसीह क़यामत की घड़ी कब होगी? तो यीशु मसीह ये कहते हैं, उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, सुनो सुनो, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। मत्ती 24:36 के अंदर है। इख्तियार हज़रत मसीह को किसी ने कहा कि मुझे अपने दाएं बिठाना। दाएं से मुराद जो है वो जन्नत वाले हैं, बाएं से मुराद जो है जहन्नम वाले हैं। तो हज़रत मसीह फरमाते हैं कि किसी को दाएं या बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। और यूहन्ना 5:30 के अंदर हज़रत मसीह फरमाते हैं, ये जो मौजज़ात की बात कर रहे हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। तो यीशु जनाब वाला दुआ करते हैं, यीशु सजदा करते हैं, यीशु इबादत करते हैं। मेरा सवाल है कि यीशु अगर खुद कलमा थे और कलमा खुदा है, तो ये खुदा किस खुदा की इबादत कर रहा था? ये खुदा किस खुदा की इबादत कर रहा था? बस ठीक है, सही है। अच्छा, उतों आवाज़ घट हुई होगी ना जनाब। अच्छा, अगली बात ये है, इनकी चारों अंजीलें मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये इस बात पे मुत्तफिक है कि यीशु मसीह को मौत आई। क्या कलमे को मौत आई? कलमा खुदा है और कलमे को मौत आई, खुदा मर गया, खुदा को मौत आ गई? कि या कलमे के नतीजे में पैदा होने वाली मखलूक यीशु को मौत आई? ये जनाब बात। मैं अपने मसीही भाइयों को ये दावत देता हूँ कि आपने उनको देखा, ये गरजे बड़ा, बरसे बड़ा, बड़ा ऊंचा बोले, बड़ा इन्होंने शोर किया, मगर मेरा चैलेंज ये था कि ना यीशु ने कहा है कि मैं कलमा हूँ, ना खुदा ने कहा है कि यीशु मेरा कलमा है। एक हवाला भी बाइबल से ना पेश कर सके, ना पेश कर पाएंगे अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, एक और ये नोट करें जनाब, मेरी बात को नोट करें, बाइबल के मुताबिक कलमा से क्या मुराद है? मैं देखूंगा जब पादरी साहब इसका जवाब देंगे। यसाया 2:3 है और मीका 4:2 है। लिखा है, सहून से शरीयत और यरूशलेम से खुदा का कलमा सादर होगा। ये पकड़ें जी किताब मुतालियाती शायद। जल्दी करें, वक्त नहीं है। खोलें, निशानी लगी है, खोलें। जी, मैंने 2 हवाले दिए हैं, एक यसाया का और मीका का, कि वहाँ लिखा हुआ है कि यरूशलेम से खुदा का कलमा जो है वो होगा। और कलमा से मुराद क्या है? ये किताब मेरी नहीं है, ये किताब जनाब मसीहियों की है, मुतालियाती अशायत है। वहाँ लिखा हुआ है कि बाइबल मुकद्दस में रोशनी या खुदा के कलमा या कलाम शरीयत की अलामत है। कलमा तो मुराद शरीयत की अलामत है। ये 2 वाले मैंने मीका का भी दिया आपको, यसाया का भी वाला आपको दिया। अब मैं तमाम मसीहियों को ये बात कहता हूँ कि मेरे प्यारे मसीही भाइयों, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें आपसे मोहब्बत है। मेरे भाई इधर बड़े गुस्से में थे, मैं आपको बताऊं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल बयान की है कि मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है कि जिसने एक आग का अलाव रोशन किया और पतंगे उसकी आंखों में इधर उधर आके कानों में तंग करते हैं,
हालांकि वो आदमी खड़ा है कि ये पतंगे आग से बच जाएं। तो हम तो भाई आपको आग से बचाने के लिए आए हैं और आपको कहते हैं कि बाइबल पर ईमान लाओ। बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? सुनो ज़रा, इस्तिस्ना के अंदर ये पादरी साहब आपको नहीं बताएंगे, लिखा है शमा या इसराइल यहोवा एलोहीनो यहोवा इखाद। शमा या इसराइल, ए इसराइल सुन ले कि यहोवा एलोहीनो यहोवा इखाद, यहोवा हमारा खुदा है और यहोवा वाहद है, वाहद खुदा, ला शरीक खुदा, ये बाइबल कह रही है। और ज़बूर 86:10 के अंदर है तू ही वाहद खुदा है। और यसाया 44:24 के अंदर मैं ही खुदावंद सबका खालक हूँ, मैं ही तखसीस के लिए आया करता है, बी नहीं ही, और मैं ही अकेला आसमान को तानने और ज़मीन को बिछाने वाला हूँ। कौन मेरा शरीक है? वो ला शरीक है। अल्लाह ताला को ला शरीक मानो, यस्सु उसका शरीक नहीं है, यस्सु उसकी मखलूक है। ये आपकी बाइबल कह रही है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है। मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मैं रोशनी का मूजद और तरीक़ी का खालक हूँ। यसाया 44:6 है। 1:3-8-60 के अंदर है कि ज़मीन की सब कौमें जान लें कि खुदावंद ही खुदा है और कोई नहीं, खुदावंद ही खुदा है और कोई नहीं है। यसाया 43 के अंदर है 10 के अंदर, मुझ पर ईमान लाओ कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद कोई खुदा ना होगा। हज़रत मसीह की तलीम क्या है? मेरे मसीही भाइयों, मसीह की तलीम पर अमल करो। हज़रत मसीह फरमाते हैं कि हज़रत मसीह से किसी ने पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है? मरकज़ की 12 और 30 आयत है, वहाँ लिखा है कि अव्वल ये है इसराइल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। वही कलमा तौहीद वाला, वही इखाद, तो वही हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। और बाइबल कह रही है कि अल्लाह जो है वो इखाद है। अबरानी में इखाद है, अरबी में अहद है। शैतान से हज़रत मसीह की आजमाइश होती है और शैतान उससे कहता है कि तू मुझे सजदा करे तो मैं दुनिया की सल्तनतें तुझे दे दूंगा। तो हज़रत मसीह फरमाते हैं कि ए मरदूद दूर हो, क्योंकि लिखा है सिर्फ अपने खुदा की ही इबादत कर, सिर्फ अपने खुदा को सजदा कर। हज़रत मसीह को कोई आके कहता है कि नेक उस्ताद, तो आप फरमाते हैं कि तू मुझे क्यों नेक कहता है? नेक तो कोई नहीं सिवाय एक खुदा के। तो बाइबल जो है वो वाहिद खुदा की तलीम दे रही है। यीशु मसीह उसके शरीक नहीं है। यूहन्ना 20:17 के अंदर अभी इन्होंने आयत पढ़ी और अपने सारे दावे से फिर गए। ये कह रहे थे कि यीशु कलाम है और कलाम खुदा है, मगर 20:17 की इन्होंने आयत पढ़ी कि मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा से के पास ऊपर जाता हूँ। अभी तो हमारा मुनाजरा ख़त्म नहीं हुआ, आपने रजू कर लिया, इंशाल्लाह आप ऐसे कुफ्री अकीदों से रजू करेंगे। कभी खुदा का भी खुदा होता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। को तो जिसका जो यीशु का खुदा था, खुदा यीशु नहीं था। अब मैं आता हूँ जनाब इनकी बातों की तरफ, जो जनाब इन्होंने बड़ा गरज के और बरस के में वक़्त ज़ाया करते रहे हैं। तो सबसे पहले अच्छा जी, मैंने हवाला दिया इनको कमूसल किताब का, मैंने हवाला दिया इनको रसूलों के अमाल का, मैंने इनको इनकी किताबों का हवाला दिया। तो इन्होंने कहा कि मैं ये किताबें नहीं मानता, मैं मानता हूँ बाइबल। तो आप खुद ना इन्होंने बाइबल से साबित किया, ना कोई बाइबल से दलील दी, खुद किससे साबित कर रहे हैं? ग्रामर से। ये ग्रामर को मानते हैं, इंशाल्लाह ये ग्रामर से भी भागेंगे, अभी आप देखिएगा। अच्छा, इन्होंने कहा जी सारी कायनात कलमाए कुन से पैदा हुई, सारी कायनात। मैंने कहा था मुशरिक के पास शिरक की कोई दलील नहीं होती। यीशु मसीह सारी कायनात से बाहर नहीं है। सारी कायनात में से मरियम बाहर है? नहीं, वो कायनात में शामिल है। यीशु कायनात से बाहर है? नहीं, वो कोई तखसीस यहाँ मौजूद नहीं है। अगर तो खुदा ये कहता कि सारी कायनात जो है ना वो मैंने पैदा की है सिवाय यीशु के, क्योंकि यीशु खुदा है, मेरा कलमा है, तो फिर तो होती तखसीस।
तो जब तखसीस ही नहीं है तो सारी कायनात पैदा की खुदा ने, तो पता चला यस्सु भी मखलूक है, मरियम भी मखलूक है। ये जनाब का कहना है कि सारी कायनात कलमा कुन से पैदा हुई। मेरा ख्याल है गुस्से में पता नहीं, आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं। और पंजाबी ये चाहते ने बंदा बौंतल गया। पादरी साहब तुसीं इसलिए बौंतल गए हो, रौला बहुत पाण रहे हो, समझ तुहानूं कोई नहीं आउंदी कि मैं कह की रहा हूं। अच्छा, अब अगली बात सुने। हर बात इनकी अपने दावे की तरदीद करती है। इन्होंने कहा कि यूहन्ना जो है वो मेरे कलाम की तस्दीक करेगा, कलमातुल्लाह ईसा का लक़ब है। इन्होंने अपना दावा भूल गए और मेरी बात की तस्दीक कर दी। यूहन्ना किसकी तस्दीक करेगा? खुदा के कलाम की। और खुदा का कलाम क्या था? यस्सु के बारे में। अब इन्होंने कहा कलमातुल्लाह ईसा का लक़ब है। हमें तो कोई इनकार नहीं, हम तो मानते हैं कि कलमातुल्लाह हज़रत मसीह का लक़ब है। मैंने कब इनकार किया है? भाई बात ये है, अब आप इतने जाहल हैं, आपने मेरी बात को समझा ही नहीं है। हद हो गई है, PhD पता नहीं कितों कर ली, तुम छोले दे के पढ़ते रहे हो। मैंने आपको कहा था कि ये इज़ाफ़ते तशरीफ़ है। मिसाल दी थी मैंने आपको कि जैसे ये खुदा का घर लिखा हुआ है बैतुल्ला, बैतुल्ला खुदा का कोई घर होता है? नहीं, ये इज़ाफ़ते तशरीफ़ है जनाबे वाला। कुरान करीम के अंदर आता है नाकातुल्ला, खुदा की ऊँटनी। दो खुदा ऊँटनियों की ज़रूरत है भाई? नहीं, ये इज़ाफ़ते तशरीफ़ है, निस्बत खुदा की तरफ की गई है। तो ये तो मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि यस्सु मसीह को हम तो कलमातुल्लाह मानते हैं, आप नहीं मान रहे उनको कलमातुल्लाह। कलमातुल्लाह खुदा की मखलूक है, उसके कलमा कुन से पैदा हुआ है, इसलिए वो हम उनको कलमातुल्लाह कहते हैं। कलमातुल्लाह खुदा नहीं है। हाँ जी, ये है फ़र्क जनाब, आप समझ लें। हमने कब इनकार किया कि यस्सु कलमातुल्लाह नहीं है? हम तो मान रहे हैं, हम तो कहते हैं ये इज़ाफ़ते तशरीफ़ है। अच्छा, इन्होंने कहा आले इमरान में है खुदा तुझे अपने कलमा की बशारत देता है। अस्मा अल मसीह, अस्मा अल मसीह। अब इस ऐसे साहब इल्म से मैं क्या बात करूं? मुझे ईमानदारी से बात बताएं। PhD इन्होंने की है, इन्हें इस्महू कहना नहीं आता। अस्माउल मसीह, अस्माउल मसीह। यार क्या है यार, इतने बड़े जाहल हैं आप, आपको ये नहीं पता। अस्माउल मसीह, अस्मा, अस्मा जो है वो आसमान को कहते हैं। इस्महू, इस्महू तसही कर लो, नहीं तो कोई छोटा जा बच्चा साड़ा जो तो पढ़ लो कुरान, खुदा दा वास्ता जे। अब आपको इस्महू और इसम में फ़र्क करना नहीं आता, इसम में अस्मा में फ़र्क करना नहीं आता। इसम तो यार साढ़े उर्दू में भी बड़ा इस्तेमाल होता है। भाई आपका इसमें ग्रामी क्या है? तो आप इस्महू को आसमाहू, असमाहू, तो आप इतने साहब इल्म हैं, तो मेरी आप बात आप कैसे समझते कि कलमातुल्लाह जो है इज़ाफ़ते तशरीफ़ है? जैसे कलमातुल्लाह, जैसे नाकातुल्लाह, ये इल्मी बातें हैं, ये ऐसे गर्जने बरसने से ये अकल में नहीं जाती। अच्छा, एक और वहशत, जनून, दीवानगी सुने। मसीह का नाम खुदा ने उस वक़्त कलमा रखा जब मसीह पैदा हुआ। ये जनाब दावा कर रहे हैं। ओ भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि यस्सु मसीह पैदा हुए, जो पैदा हो वो मखलूक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो खुदा जब वो पैदा हुए तो खुदा ने उनका नाम रखा। तो क्या इसम और मसम्मा जो है वो एक है, बराबर है दोनों? हद हो गई है भाई। आप मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि यस्सु पैदा हुए वो मखलूक है, जो पैदा हो वो मखलूक है। अच्छा, एक बड़ा चैलेंज इन्होंने किया है, ये बड़े चैलेंज करते हैं। इनका एक चैलेंज आपको देख का एक दाना चेक कराऊं। इन्होंने कहा कि सारे नबियों की नाज़ला, नाज़ला का लफ्ज़ है। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मरियम के सिवा अल-कहा खुदा ने किसी को नहीं कहा। ये इनका चैलेंज है। ये आपका चैलेंज अभी मैं कुरान से तोड़ दूँ तो फिर कोई शर्म आ जाएगी कि वो ही गल है। सुन ले ज़रा, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में यही बात अलका के अल्फाज ही इस्तेमाल किए हैं। सूरह बकरा है 237 है। फाता लक्का आदमा। किथे गया तुम्हारा चैलेंज? चैलेंज, चैलेंज, पूरे इस्लाम नू चैलेंज, पूरे इस्लाम नू चैलेंज कि अलका का लफ्ज़ मरियम के ला आदम के लिए भी फाता लक्का आदमा। ये बकरा 237 है। तुम्हारे चैलेंज तो इंज दे ही हुंदे ने, पता नहीं तुम्हारे चैलेंज की हो गया। अच्छा, खुदा ने बेटे की मार्फत कलाम किया, उसका नाम मसीह है। खुदा ने बेटे की,
लो जी, मुझे हंसी आती है खुदा की कसम इनकी हमाकत पे। कहते हैं खुदा ने बेटे की मार्फत कलाम किया। खुदा कौन है और बेटा कौन है? बेटा है जी यस्सु मसीह। यस्सु कौन है? कलमा। खुदा, कलमा क्या है? खुदा। मतलब वही खुदा, एक आप बेटा मान रहे हैं, एक को बाप मान रहे हैं, तो आप तो दो खुदा मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कलमा खुदा है, तो या तो आप कहें कि भाई कलमा खुदा नहीं है, कलमे के नतीजे में यस्सु पैदा हुआ, फिर तो कोई बात बने। तो फिर बेटे को बाप के बराबर बना रहे हैं। ये दुनिया का इतना बड़ा लतीफ़ा है और फराड है। ईमानदारी से बताएं, कभी आपने कोई बेटा ऐसा देखा है जो अपने बाप की उम्र के बराबर हो? वो हलाल दा तो नहीं हो सकता जरा प्यो दे मरदा है। ईमान से दसो, बताओ यार, ईमानदारी से बताओ कि जिस बाप और बेटे की उम्र बराबर हो, कोई फर्क ना, वो हलाल दा पुत्र होएगा। कोई खुदा का खौफ करे, कभी वो खुदा है ये बेटा है, और फिर दोनों को बराबर भी कर रहे हो, ये भी कह रहे हो कि यस्सु खुदा है। मैंने दुनिया में कोई ऐसा बाप बेटा नहीं देखा जिन दोनों की उम्र जो है वो यकसा हो, बराबर। अच्छा जी, लोगोस इन्होंने कहा, लोगोस जो है वो कलमा को कहते हैं, और कलमा जो है वही है। आपने खुद तस्लीम कर लिया कि पैदाइश की किताब में इब्तदा में खुदा के कलाम से सारी जहान पैदा हुआ है। सारे जहान में यस्सु भी शामिल है, मरियम भी शामिल है। अच्छा, खुद इन्होंने, मैं अब बातें वो कर रहा हूँ जो इन्होंने की थी। इन्होंने कहा कि जब वो यस्सु ऊपर आसमान पे जाने लगा सलीब के बाद, तो उसने कहा मुझे छू के देखो, मुझे छू के देखो। आप जनाब ये देख लें, वीडियो देख लें। इन्होंने ये कहा है कि यस्सु खुदा नादीदनी है। तो यस्सु को तो लोगों ने देखा, उसे छू के भी देखा, तो वो खुदा कहाँ से हो गया? अगर वो कलमा है तो मखलूक है, खुदा नहीं है। इन्होंने कहा जी कलमातुल्लाह जो है वो मजाज मुरसल है, सिर्फ ईसा का लक़ब है, जैसे ज़बीउल्लाह सिर्फ हज़रत इब्राहिम का लक़ब है, कोई शक नहीं है। कलमातुल्लाह हज़रत ईसा का लक़ब है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए उनका लक़ब है। मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग जो है बिन बाप की पैदाइश को नहीं मानते हैं, जैसे यहूदी नहीं मानते हैं, तो अलका, इसलिए कुरान करीम ने ये कहा कि वो कलमा कुन से पैदा हुए जो खुदा ने मरियम की तरफ अलका किया था। तो इसमें तो कोई ऐसी बात। अच्छा, मजाज मुरसल, बात यह है कि हर जगह जो कानून है ना इंसानों के बारे में, हम खुदा के बारे में, वो कानून हर जगह नहीं होगा। मिसाल के तौर पे पादरी साहब एक मिनट, अल्लाह ताला सुनता और देखता है या नहीं? मैं आपसे मुखातब हूँ जी, मुझे जवाब दे। अल्लाह ताला सुनता और देखता है कि नहीं? अल्लाह ताला सुनता और देखता है, समीउन बसीर है। तुसी सुनते तो वेंदे कोई नहीं, वेंदे हो पे नहीं, सुनते हो पे नहीं, तो की खुदा हो जाओगे? नहीं। मैंने अर्ज़ किया है, बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है कि लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मानंद कोई चीज़ नहीं है। खुदा का देखना हो रहा है, हमारा देखना हो रहा है, खुदा का सुनना हो रहा है, वो अपनी शान के मुताबिक है। ठीक है, तो बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं ना जी मुजाज मुरसल की, तो वो मखलूक की बात है। ये खुदा के लिए कायदा कानून कुलिया और है। अगर इन्होंने मखलूक के बनाए हुए असूल पे खुदा को परखना है तो ठीक है, अभी देख रहे वहाँ से भी इन्होंने भाग जाना है। तो बात यह है कि जिस तरह अल्लाह ताला समी और बसीर है, हम भी समी और बसीर हैं, मगर खुदा का देखना सुनना और है, हमारा देखना सुनना और है। तो खुदा की जो बात सिफात जो है मिलती जुलती ऐसी मिसालें जो इंसानों में है, जैसे समी और बसीर की, वो खुदा के बराबर नहीं हो सकती, वो और चीज़ है। बाइबल भी कह रही है कि खुदा की मानंद कोई नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कलमातुल्लाह मरकब इजाफी है, जो सिफात मज़ाफ़ की होती हैं वही मज़ाफ़ अलैह की। हाँ, मैंने इनको हवाला दिया कमूसल किताब का कि कमूसल किताब ये कह रही है, आपकी रसूलों के अमाल ये कह रही, क्या अपनी किताबों के भी इनकारी हो गए, अपनी किताबों के भी मुनकर हो गए। मैं नहीं मान, कैथोलिक की बाइबल से भी ये मुकर जाएंगे अभी, मैं नहीं मानता। और मैंने हवाला दिया था कि 3 खुदा है आसमान पर जो गवाही देते, देख लीजिएगा ये मुकर जाएंगे, कहेंगे आयती जेली है। मगर हमें इंसानों की बनाई हुई ग्रामर, उस पे खुदा को परख रहे हैं। क्या अकल है माशाल्लाह। मसीह इल्लते मुहद्दिसा है। ले जी सुन लो, आपको इल्लते मुहद्दिसा का मानी आता है? इल्लते मुहद्दिसा का मानी क्या है मुझे बता दो। इल्लते मुहद्दिसा जो मैं समझता हूँ, एक लफ्ज़ है, हम कहते हैं कुल्लो
मुहदसतिन बिदा, हर नई चीज़, मुहदस हर नई चीज़ को कहते हैं। एक दूसरी बात है मुहद्दस, हदीस बयान करने वाला। तो इन दोनों में से ये बात तो नहीं है, ये है इल्लत मुहद्दसा। इल्लत मुहद्दसा एक हादस है, हादस एक होता है हादस, एक होता है कदीम। अच्छा, हादस को कहते हैं जिसको हादसा पेश आ जाए, जिसे मौत आ जाए, जो मर जाए। सुन ले जी, आप बता दें जी, आप बता दें, हुण दस दो। अच्छा, इल्लत मुहद्दसा किसी हवाले नाल दसिया जे, घरों ना बना लिया जे। हाँ जी, अच्छा, इल्लत मुहद्दसा, इन्होंने कहा यसु इल्लत मुहद्दसा है, तो मतलब ये हुआ कि जिसको हादसा पेश आ जाए, जिसे मौत वाक़या हो जाए, तो इल्लत जो मुहद्दस है वो खुदा नहीं हो सकता है। ठीक है, इनके तो यही हमारा दावा था कि यसु खुदा नहीं है। इनका दावा था कि यसु कलमा है और कलमा खुदा है। तो इन्होंने इल्लत मुहद्दसा मान के तो खुद अपने दावे की तरदीद कर दी। अच्छा, यूहन्ना 14:10, बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। बात यह है, ये सियाको सबाक नहीं पढ़ते, झूठ बोलते हैं। इसी यूहन्ना ने ये भी बयान किया है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसी यूहन्ना ने ये भी बयान किया है कि जो बाप मुझसे कहता है वो मैं तुमसे कहता हूँ। तो इससे मुराद ये है कि बात जो है, बात खुदा की और नबी की बात एक होती है, ज़ात एक नहीं होती। बात क्यों एक होती है कि खुदा नबी को पैगाम देता है और नबी वही बात करता है। हम इस पे इत्तेफाक करते हैं, हमारा इसमें कोई इनकार नहीं है जी। ठीक जी, मेरा वक्त पूरा आ गया, कुछ बातें रह गई हैं अगले रिपोर्टल में जी। ठीक है, मैं दावत दूंगा पादरी डॉक्टर यूसुफ भट्टी साहब से कि वो आएँ और अपना जवाब दावा पेश करें। पादरी डॉक्टर यूसुफ भट्टी साहब। भाई आप खामोश हो जाएं। आपके नहीं भाई, ये बातें कर रहे हैं जो ये हक नहीं है। आप खामोशी से सुने। मैं ये सारे जो बैठे हुए ना, ये खामोशी से सुनते, किसी ने कोई बात नहीं की है। पहले तो मैं आपके हवाले की, वो जो आपने गलत हवाला दिया ना, झूठ बोला है, और वो उसको मैं पढ़ देता हूँ। अब ये नोट करने जो आपने हवाला बोला, ये इसमें रिकॉर्ड हो गया है कि गवाही देने वाले 3 हैं, बाप और बेटा और कुदरत। अब मैं हवाला पढ़ने लगा हूँ, ये इसमें नोट आप देखना कि हकीम साहब की बात सच्ची है या मैं जो कह रहा हूँ ये सच्ची है। ये झूठा हवाला दे के आप दौस जमाना चाहते हैं। अब सुनिए हवाला जो गलत आपने बाइबल का दिया है। अब यूहन्ना की इंजील का ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में मौजूद है। अब सुनिए जी, जो हवाला दिया है वो ये है, और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह और पानी और खून। ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं जब हम आदमियों की गवाही को बोलते हैं। ये है, ये जो इन्होंने हवाला दिया है कि और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह और पानी और खून। इन्होंने कहा गवाही देने वाले 3 हैं, बाप और बेटा और खुदा। खुदा के बंदो, किन के हवाले हम पर ठोंस रहे हो? मैंने पहले अपना अकीदा बता दिया है। मैंने पहले अपना अकीदा बता दिया कि हम ना 3 खुदाओं को मानते हैं। ये तसलीसियों के जो हवाले आपने नोट किए हुए ना, ये उनको देना। मैं वाहिद खुदा को मानने वाला हूँ, और मैंने ये हवाला आपको दिया था कि यूहन्ना की इंजील 20वें बाब की 17वीं आयत में पढ़ के अपना अकीदा आप पर वादे कर दिया है, और फिर वही अकीदा आप बार बार दोहरा रहे हैं। ये मुझ पर ठोंस रहे हैं, ये मुझ पर नहीं, ये उन पर ठोंसिए जिनके साथ आप नूरा कुश्ती लड़ते रहे। ये हवाला मैंने दे दिया है ना, ये हवाला आपने गलत बोला था, इसलिए उसकी मैं तरदीद कर दी है। वही पहला यूहन्ना 5वें बाब की 7वीं 8वीं आयत में जो और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है, और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह और पानी और खून। आपने जो आपके रिकॉर्ड में मौजूद है, आपने कहा गवाही देने वाले 3 हैं, बाप और बेटा और ये तसलीस हम मुझ पे ठोंस रहे हैं। मैं तसलीस को मानता ही नहीं, मैं वाहिद खुदा को मानने वाला हूँ। और यसु क्या है? सोना इधर सुनो, ये मेरी तरफ ध्यान करो हकीम साहब,
حکیم صاحب آپ ڈاکٹر یوسف کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا ہے, آپ انہیں تسلیفیوں کے ساتھ نہیں, یہ شفیق کمل کو دینا, میتھیو سلیمان کو دینا یہ حوالے جو آپ دے رہے ہیں نا, مجھ پہ ٹھونس رہے ہیں اور اپنی دھونس جما رہے ہیں. ہاں جی, یہ میں نے آپ کا میرے گھر میں آیا ہے, میں آپ کو نہیں جھوٹا کہوں گا, یہ میں نے حوالہ دے دیا ہے, یہ آپ کا حوالہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, میں نہیں کہتا. اب سنیے, میری طرف دھیان کیجئے اور بٹن میں لکھیے یسوع کون ہے. یہ احادیث میں موجود ہے یہ کہ وہ جے تین ہے, صرف ایک جہت نہیں ہے, وہ صرف انسان نہیں ہے, وہ جے تین ہے. اب سنیے, یہ سورۃ اعراف میں بھی آتا ہے, وقت کی نزاکت سے میں وہ نہیں پڑھتا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورۃ اعراف میں حضرت موسیٰ کے لیے آتا ہے کہ جب وہ جھاڑی میں آئے نا تو جو شعلہ نظر آ رہا تھا وہ اس کی طرف گیا اور آواز آئی, میں تیرے باپ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں, اپنے پاؤں سے جوتی اتار. یہ سورۃ اعراف میں بھی ہے. اب آواز کس کی آ رہی تھی؟ خدا کی آواز تھی. اللہ خود کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے میں تیرے باپ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. اپنے پاؤں سے جوتی اتار. آواز خدا کی تھی, آج جھاڑی میں سے رہی تھی. جس طرح جھاڑی خدا نہیں تھی اس میں خدا تھا, اسی طرح جو بدن حضرت مریم صدیقہ کے بطن اطہر سے مولود ہوا وہ بدن خدا نہیں ہے, اس میں خدا ہے. جو بطن اطہر سے مولود ہوا وہ بن باپ ہوا ہے. اور جبرائیل آ کے مریم صدیقہ سے کہتا ہے یا مریم سلام علیکم مبارکن بین نساء العالمین, اے مریم تو تمام جہانوں کی عورتوں میں سے مبارک ہے, تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. اب مریم نے انکار کر دیا, ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی انسان نے مس ہی نہیں کیا. یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. اب وہ کس طرح پیدا ہوئے؟ لوکا پہلے باب کی 35ویں آیت میں ہے, جس طرح سورۃ تحریم میں آتا ہے, مطلب روح منہ فانفخنا الی مریم. یہی بات جبرائیل نے کہی کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اس لیے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور بیٹے کی بات سن لیجئے, آپ پتہ نہیں کن سے بات مناظرے کرتے ہیں. بیٹا ایک لقب ہے, یہ محبت کا ایک لقب ہے. بیٹا ایک لقب ہے اور یہ محبت کا لقب ہے. لقب جو ہوتا ہے وہ کسی صفت کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں یہ ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. لِأَنَّهُ هَكَذَا ذَهَبَ اللَّهُ الْعَالِمَ حَتَّى بَعَثَ الْابْنَ الْوَحِيدَ لِكَيْ لَا يُهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بَلْ تَكُونَ لَهُ الْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ. کہاں سے کن کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں؟ اب بیٹا جو ہے وہ خدا نے, یہ میں نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا. یوحنا کی انجیل 20 باب کی 17ویں آیت میں واضح کر دیا. پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 24ویں آیت میں واضح کر دیا کہ وہ مسیح خدا کی قدرت ہے اور اس کی حکمت ہے. کب ہم نے کہا کہ وہ دوسرا خدا ہے؟ کب میں نے کہا ہے؟ جو بار بار ٹھونس رہے ہیں, بار بار زبردستی ٹھونس رہے ہیں, یہ ان پر ٹھونسی ہے جو جن کا یہ عقیدہ ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. یہ کیا ہے؟ ہاں جی, تو ان کو یہ بات کہیے, میں نہیں کہتا, ان سے کہیے آپ. یہ میں نے آپ کے پر واضح کر دیا. اور یسوع کیا ہے؟ جے تین ہے. وہ انسانی روپ میں کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. خدا کی قدرت اس میں کام کرتی ہے. کہ 3 منٹ رہ گئے, سبحان اللہ. میرے ٹائم نو کی ہوندا ہے؟ وہ میرا ٹائم ایڈی جلدی ایڈی سپیڈ آ کچھ خدا دا ترائے وہاں دیو پہ مینوں میں کہا میں نے اپنا عقیدہ آپ پر واضح کر دیا. آپ زبردستی وہ عقیدہ ہم پر ٹھونس رہے ہیں. اور جب میں نے کہا ہے علت محدثہ, آپ اس کا کیا معنی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی محمد اکبر کا تبادلہ گجرانوالہ سے
मुल्तान में उसका क्या हो गया है, मुंतकिल हुआ है, तबादला हुआ है। और एक इंतकाल है कि अकबर का बाप इंतकाल कर गया है। लफ्ज़ इंतकाल ही है ना, लफ्ज़ इंतकाल ही है। एक मानी क्या है, एक मानी है कि वो फौत हो गया है, एक मानी है कि उसका इंतकाल हो गया है। कितों, लाहौरों मुल्तान इंतकाल हुआ है, वो क्या है, तो अब तबादला हुआ है। आप इसको हादस को क्या समझते हैं? इल्ते मुहद्दसा कहते हैं सबब। वो सबब क्या है, कौन? ये तो कुरान में ये बयान कर रहा है, ये कायनात को खलक करने का सबब क्या है, कायनात को खलक करने का सबब कौन है? जो उसने क्या किया, अलकाहा ला मरियमा। और जो आपने आदम की मिसाल दी है ना, वो अल्लाह ताला ने जानवरों के, परिंदों दरिंदों के नाम अलका किए थे। किसने किए? अलका खुदा की तरफ से होता है, और ये खुद खुदा ने अलका किया है। और जो अंबिया कलाम करते हैं वो नज़ाला होता है, वो मैंने बता दिया आपको। और जो अलका है ना, लफ्ज़ अलका, ये खुदा ने हजरत आदम को जानवरों, परिंदों दरिंदों को जो नाम बताए थे, आज तक वही नाम है। और ऐसे नाम जो खुदा ने बताए, गीदड़ का नाम बताया तो उसकी सिफ्त क्या है? भागना, डर जाना, खौफजदा हो जाना। लायन, शेर का नाम बताया है, और शेर के नाम से ही दाश्त होती है। ये अलका किसने किए हैं नाम? ये फरिश्तों पर हजरत आदम की फजीलत बयान करने के लिए खुदा ने ये सारे नाम अलका किए थे। और यही है अलका है ला मरियमा। किधर मैंने ले जाते, जिधर मर्जी तो ले जाओ। इसका मतलब ये है कि हम अरबी को जानते नहीं है, अरबी की दोस्त आप जता रहे हैं कि ये मुहद्दिस का जो इल्ते मुहद्दिसा है, उसका मतलब है सबब। सबब क्या बना है, कनमा कुन, तो ये उसका सबब है। हम हादस के मैं नहीं बता दी, इल्ते मुहद्दिसा के मैं PhD की थी है, तो दस मैंने चैलेंज कदा कर दियो पे। सुभान अल्लाह। हाँ जी, और जिन्हों के हिले है ना, उन्होंने तो यह करे जे सवाल, ये डॉक्टर यूसुफ से ना करो यह सवाल, और ना यहो कच्चियां दलीलां जिहड़ियां ने मैनूं दिया जे। हाँ तू बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। दलील वो जेहतैन है। अब रह गई सलीब पर बात, सुनो सलीब पर बात। सलीब पर बशरियत मरी थी, अलूहियत नहीं मरी थी। ये जरा हवाला निकाले जी, ये साया 54 बाब उसके साथ में आता है। अब जल्दी जो पढ़ सकता है, यहाँ जल्दी जो बाइबल का जो हवाला है इनको सुना दें जरा, थोड़े को कोई नहीं। आप जी लफ्ज ही कर लें जे अस्मा, और मैंने कहा इस्माउल मसीह साहिब ने मरियम, केड़ी में गलती कर देती है? खुदा के बंदो, ये जो तलफ़ुज़ है ना, इनकी जो गलतियां आप मेरी निकाल रहे हैं, आप इसके मफहूम को समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझे तो मैं क्या कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू कुरान मजीद कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड हो रही है, और फिर भी इसको देख लेना, ये फिल्म बन रही है ये। हाँ जी, अब जो बात हो रही है ना मसीह की, मसीह जेहतैन है। बेशुमार अहादीस है जो मैं आपको पेश कर सकता हूँ कि वो जेहतैन है। वो जिस तरह मैंने मिसाल दी है कि जिस तरह जाड़ी खुदा नहीं थी, आवाज़ जाड़ी में से आ गई, सूरत राह में है, जाड़ी में से आवाज़ आई थी कि मैं तेरे बाप इब्राहिम इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। जिस तरह जाड़ी खुदा नहीं थी, उसमें खुदा था। इसी तरह जिब्राइल जब आके कहता है रूल कुदरत तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और ये क्या है? कुदरत, एक कुदरत है, एक बशरियत है जो बतन मरियम से पैदा हुआ है। जो बतन मरियम से पैदा हुआ वो आदम के नस्ल आदम से नहीं है, वो रूल कुदरत की कुदरत है, वो खुदा का कलमा कौन है। और यही हमारा मौक़िफ़ है, ये भी बाइबल का मौक़िफ़ है, और ये कुरान मजीद का भी मौक़िफ़ है। गलत मैंने बात क्या कह दी है? वो हमारी तरह इंसान नहीं है। और जो मौजज़ात हुए हैं, मैं सूरत आल इमरान के भी बता दिया, सूरत मैदा में भी बता दिया, ये हवाले मेरे पास मौजूद हैं। ये कुरान मजीद में हवाला जात हैं, और इसमें मैं अपने अकीदे की भी वजाहत कर दी है कि जो भी उन्होंने मौजज़ा किया बेइज़्निल्लाह, और मैंने वजाहत कर दिया है। और फिर वो आप ज़बरदस्ती वो उसको ठोस रहे हैं, हम दूसरा खुदा मानते हैं, तीसरा खुदा मानते हैं, खुदा एक है। ये उसकी कुदरत का एक मज़हर है। जिस तरह पहला करंथियों पहले बाब की 24वीं आयत में मैंने बता दिया अपना अकीदा, ये उस मसीह पैदा होना बिन बाप के,
بن باپ کے پیدا ہونے، یہ خدا دکھایا ہے میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، وہ کل شین قدیر ہے۔ اور جس طرح یہ سورۃ میدہ میں آتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ کَمَثَلِ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ، ہاں جی، اور کیا ہے، اس کو خَلَقَهُ مِن طِین، اس کو مٹی سے بنایا، اور یہ کیا ہے، کن فیکون۔ یہ فرق ہے دونوں میں، نسل آدم میں، ہم نسل آدم ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں جاتے ہیں، وہ نسل آدم نہیں ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس کی قبر خالی ہے اور وہ آسمان پر ہے۔ سب جو مٹی سے بنائے گا وہ مٹی میں ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ اور اس نے کنیسۃ القمامہ، یہ مسلمانوں نے جو یروشلم پر قبضہ کیا ہوا تھا نا 1260 سال، انہوں نے اس پر قدبہ لگایا ہوا ہے۔ تو اب مسیح کیا ہے، جس طرح یسایہ 9 باب کی 6 آیت نوٹ کر لیں، یسایہ 9 باب کی 6 آیت نوٹ کر لیں، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یہ ہے، یہ نوٹ کر لیں، میرا حوالہ کا آپ کو پتہ چل گیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ لڑکا تولد ہوا کس سے؟ بطن مریم سے، جس کا بڑا زور لگے تھے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ مریم کے بطن سے نہیں پیدا ہوا؟ وہ نسل بطن سے، عورت کی نسل سے ہے۔ نسل آدم جو ہے اس میں موروثی گناہ موجود ہے، جس میں میں نے وہ بات بتائی تھی آپ کو سورۃ بقرہ کی، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکل جو عدن سے باہر۔ خدا نے نہ صرف آدم کو نکالا، اس کی ذریت کو بھی نکال دیا، اور نہ صرف موت آدم کے لیے، اس کے گناہ کا پھل تھا، ہر انسان مرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت آپ کو نہیں آتی، آپ کے باپ دادا کہاں ہیں؟ مر گئے ہیں سب۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ موروثی گناہ کے سبب سے ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے مناظرے میں بھی چیلنج کیا تھا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکل جو عدن سے باہر۔ اب یہ جو مسیح کے لیے کہا گیا ہے، یسایہ نبی کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ یہ تولد جو لفظ ہے کس سے ہے؟ ولدہ سے۔ جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اس کا ایک ٹائم ہے۔ روح القدس کا ٹائم نہیں ہے، کلمے کا ٹائم نہیں ہے۔ کلمہ جب سے متکلم ہے تب سے کلمہ ہے، اور وہی جو کلمہ ہے وہ القاہ الی مریم ہے۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، تولد وہ بطن مریم سے ہوا ہے۔ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور بخشا گیا کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ لِأَنَّهُ هَكَذَا بَلَّغَ اللَّهُ حَتَّى بَعَثَ الْإِبْنَ الْوَحِيدَ لِقَالَ يُولِكَ كُلُّ مِنْ بَلْ تَكُونِ لَهُ الْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ۔ یہ بیٹا جو ہے، اور بھائی یہ بائبل کی آیت ہے، مات پھیرے، یہ میں بائبل کی آیت پڑھ دی ہے، اور یہ دلیل کے لیے میں نے دی ہے کہ وہ جو کلمہ ہے نا، وہ کلمہ جو ہے یا روح ہے، وہ بطن مریم سے، مطلب مریم سے ایک جسم مولود ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، لڑکا تولد ہوا ہے بطن مریم سے، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ بیٹا صادر ہوا ہے، پیدا خدا سے نہیں ہوا، خدا سے صادر ہوا ہے، اور بیٹا ایک لقب ہے، وہ خدا کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ مسیح کیا ہے؟ خدا کی قدرت اور اس کی حکمت ہے۔ یہ میں نے واضح کر دیا، بار بار ہم پہ وہی ٹھونس رہے ہیں، وہ تثلیثیوں کا خدا ایک خدا ہے، دوسرا جو مسیح ہے، تیسرا روح القدس۔ کب میں نے کہا ہے؟ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلم بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، میں نے کہا ہے کہ خدا نمبر 1 اور بیٹا خدا نمبر 2 اور روح القدس خدا نمبر 3، یہ میں نے بولا ہے، تو پھر کیوں مجھ میں یہ ٹھونس رہے ہیں؟ ہاں، تو اب یہ خدا کا خوف کیجئے، جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا اس کی تردید کرنی ہے، جو میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس کی آپ تردید کر رہے ہیں۔ تو خدا را جو میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے نا اس کی آپ نے تردید کرنی ہے۔ یہ وہ جو شفیق، کمل اور میتھیو کے ساتھ کرتے ہیں نا جی، یہ جو حوالے آپ نے نوٹ کیے ہیں ان پر یہ ٹھونپنا، یہ مجھ پر نہیں ٹھونپنا۔ میں نے اسلامیات میں PhD کی ہوئی ہے، اور یہ عربی کی ڈاؤں سے ڈال کے نا مجھ پہ یہ اپنے معنی جو ہے نا قرآن مجید کے صحیح معنی کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، غلط معنی کریں گے آپ کو عذاب ہوگا۔ جب میرا یہ ایمان ہے تو آپ کا ایمان کہاں گیا؟ آپ غلط طویل کر دیتے ہیں قرآن مجید کی، اس کا غلط ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں یہ مسیح
अब जो गलतियाँ जी या इस्माउल मसीह ने, भाई मैंने क्या कहा, इस्माउल मसीह साहिब ने मरियम वजीहन फिर दुनिया वाला आखिरत किस वजह से है, वजीहन दुनिया में किस वजह से है, आखिरत में किस वजह से है, क्या है, को रूला है। और आपने कलमतुल्लाह तो मान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मान लिया, हमारे दावे की तायीद कर दी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने वो जो हमारा दावा है उसको कबूल कर लिया है, रूला कलमतुल्लाह आपने मान लिया। ये कुरान का है, कुरान मजीद में लिखा है कि वो रूला है, वो कलमतुल्लाह। मैंने पढ़ाया है, आप उनको पढ़ लें, देख लें, कुरान मजीद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और फिर ये जो आप दे रहे हैं, जो किसका हवाला दिया है आपने, कैथोलिक का, और रूल कुदस की दुल्हन है, रूल कुदस की दुल्हन है। भाई ये इन किताबों के हवाले दे रहे हैं, बाइबल हमारे लिए हुज्जत है। आप वो जो झूठे हवाले जो दे रहे हैं, आप देखिए खरूज की आपने हवाला दिया है। अब सुन लीजिए हमारा अकीदा, ये इस्तिशना, ये नोट कर लें, छठे बाब की चौथी आयत है, और ये इसराइल का, यहूदियों का पहला कलमा है। जिस तरह आपका पहला कलमा है अव्वल कलमा तय्यब, तो तय्यब जो है ये पहला कलमा है, ये उनका कलमा शमा था, शमा इसराइल। सुनो, शमा इसराइल, यावे उलूहीनो यावे अखाद, ऐ इसराइल सुन ले, मैं कल्ला ही खुदा हाँ, तुहानू मिस्र चों कढ के लियाउण वाला, मैं कल्ला ही खुदा हाँ। कित्थे है त्रै आ गए, वो जेड़े त्रै बनांदे ने उन्हां नाल गल करिया जी। यावे इसराइल, शमा इसराइल, यावे अलूहीनो यावे अखाद। अबरानी की दौस जला रहे हैं और गलत तर्जमा कर रहे हैं। ये किन का तर्जमा आपको मुझे सुना रहे हैं? ये तर्जमा सही कीजिए, सही तर्जमा कीजिए जो लिखा हुआ है। अलूहीनो, मैं अकेला ही खुदा हूँ। और ये 3 मरतबा जो खुदा का नाम आता है ना, ये पहले है यावे, मतलब है तुम्हें खलक करने वाला, और अलूहीनो ये तुम्हारा खालक और मालिक मैं हूँ, और यावे तुम्हें मिस्र से आजाद करने वाला, यानी तुहानू खलक करने वाला भी मैं हाँ, मिस्र चो कढ़ने वाला भी मैं हाँ, और तुहाडा राजक भी मैं, इकल्ला ही खुदा हाँ जो कुछ कर रहे हैं। ऐदा मतलब है बनी इसराइल का ये कलमा शमा है, पहला उनका कलमा है। तो कब हम इनको कहा है ये 3 खुदा है, उनसे कहिए जो कहते हैं, ये उन पर ये टॉस जमाइए। बहुत शोर सुनते थे सीने में दिल का, चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। तो ये जो आप हमारे मुझे जो हवाले दे रहे हैं ना, ये जो तजादात हैं, और भाई मजू है कलमतुल्लाह रूहुल्लाह, आप बाइबल के तजादात बता रहे हैं। भैया ये मजू है, जो आप मजू ही नहीं है उसको आप ज़ेरे बहस क्यों ला रहे हैं? क्यों अपना भी वक्त का ज़ाया करते हैं और मेरा भी वक्त ज़ाया करते हैं? और फिर जो आपने ये कहा है यूनानी ज़बान में, ये झूठ बोला है, ये आके इधर ये हवाला आपने देना है मोनोगलील, ये क्या बोल दिया है कि खुदा के नुत्फे से आप बाइबल की तकदीब कर रहे हैं, कुरान मजीद की तकदीब कर रहे हैं। ये लिखा ही नहीं है मोनोगलील। ये मोनोगलील जो है इसका क्या आपने तर्जमा कर दिया? जब बाइबल कह रही है रूल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा, अब मोनोगलील कैसे हो गया? अब जो कुरान मजीद कह रहा है वह काले मातो हुआ लकाहला मरियम, मोनोगलील कैसे हुआ? अब बिन बाप हुआ है। कुरान मजीद शहादत दे रहा है और फिर उसको कह रहे हैं, फिर झूठा हवाला दे रहे हैं कि यहूदी जो कहते थे मरियम पर इल्ज़ाम लगाते थे, ये कुरान मजीद में लिखा है, बाइबल में नहीं लिखा। वो उसे सतूदा कहते थे, और सतूदा का मतलब है पाक औरत, सतूदा का मतलब है तारीफ जिसकी की जाए। तो आप कैसे हवाले दे रहे हैं और कैसे ये आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं जो जिसका जिक्र ना कुरान मजीद में है और ना, अगर ये आप हवाला दे के तो कुरान की तकज़ीब कर रहे हैं। आप कुरान के भी मुनकर हैं और कुरान की आप तौहीन कर रहे हैं। तौहीन कुरान है आप, जो कुरान उनको कलमतुल्लाह कहता है, कुरान उनको रूल कहता है, बिन बाप पैदा हुआ है, रूल कुदरत से पैदा हुआ है। आप उसको बोलोगे खुदा के नुस्खे से, ओ सुबहान अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, 1000 बार नाउज़ बिल्लाह। और ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतना बड़ा इल्ज़ाम यहूदी तो कहते थे। और ये जो सूरत मरियम में लिखा हुआ ना कि ये तो कहाँ से ले आई, और उसने कहा वह इशारुन लाए है, और बच्चे की तरफ इशारा किया, और उसने जिसका सूरत आल इमरान में क्या वयुकल्लिमुन्नास फिल महद, वो गोद में कलाम करेगा, ये तो उनका मौजज़ा है।
गोद में कलाम करेगा। उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्ला वजह आलनी मुबारक ऐनामा कुन, तो मेरी आसमानी ज़िंदगी भी मुबारक है और ज़मीनी ज़िंदगी भी मुबारक है। कहाँ से तवील कर रहे हैं और कहाँ से इल्ज़ाम लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? तो आप तो आप मुनकर कुरान हैं, आप उसकी भी तकज़ीब कर रहे हैं। जो कुरान मजीद इजाज़त दे रहा है, जो कुरान मजीद कह रहा है, उसको मान लीजिए, मेरी ना मानिए। मैं कब कहता हूँ कि मेरी मानो? ये बाइबल हमारे लिए हुज्जत है, इधर उधर की किताबों के हवाले हम नहीं मानते। अब मैं कुरान का हवाला दे रहा हूँ और आप मुख्तलिफ लोगों के हवाले दे रहे हैं। अभी जो आपने ये कहा है सलीब पर, यह बयान तो बड़ा लंबा है। ये 54 बाब की 7वीं आयत कड़ी, सलीब पर जो था वो बशरियत थी। सलीब पर अलूहियत नहीं थी। अलूहियत नहीं मरती, अलूहियत खुदा को मौत नहीं आती। ये उसने इंसान पर उसके गुनाह के सबब वारद की है। ये 54 बाब की 7वीं आयत पढ़िए जरा, वो बशरियत थी या अलूहियत थी? सलीब पर बशरियत थी जो कहती है एली एली लमा की वक्त नहीं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मौत बशरियत को आई थी। इन्ना मतवफ़ीका व राफ़ियुका या ईसा, इन्नी मतवफ़ीका व राफ़ियुका, मैं तुझे मौत देने वाला हूँ और फिर तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। पहले ये 4 वादे हैं, ये कुरान मजीद में 4 वादे किए गए हैं और 4 वादे सच्चे हैं। ये कुरान मजीद की तस्दीक है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। तो जो अल्लाह ताला ने 4 वादे किए थे ना हज़रत ईसा के साथ, वो 4 वादे पूरे हुए। मुतवफ़ी का पहला वादा है, राफ़ियों का दूसरा वादा है और मुतहरियों का तीसरा वादा है और चौथा वादा है जायलुल्लाह ज़ीना तबाउ का फ़ौक़ुल्लाह ज़ीना, तेरे मानने वाले क़यामत तक काफ़िरों पर गालिब रहेंगे। और मेरा जो दावा है आज मसीहत पूरी दुनिया पर गालिब है। पढ़िए जरा, कहाँ पढ़ते हैं? मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया सुनिए, मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया लेकिन रहमत की फरावानी से तुझे ले लूंगा। ये खुदा कह रहा है, मैंने एक पल के तुझे छोड़ दिया। पढ़िए आगे। हाँ जी, खुदावंद तेरा निजात देने वाला फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एक दम के लिए तुझसे मुंह छुपाया, पर अब मैं अब्दी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा। शिद्दत को आप समझते हैं क्या थी? क्योंकि मेरे लिए ये तूफान नूह का सा मामला है। मेरे लिए ये तूफान नूह का सा मामला है। शुक्रिया, ये जाइए जी आप। अब ये जो आप कह रहे हैं ना जी, मैं करूं, मैं भाई अपनी बात रखो, मैं